Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, this is me, Saleh here with another video of class 10th Pak Study, and according to the new syllabus 2025 to 26, and we have already discussed unit number 1, 2 and 3, and the unit number 4 Pakistan and World Affairs, short question answers and the MCQs. And in today's lesson, students, we are going to discuss and marking of the long question answers of unit number 4 Pakistan and World Affairs. First, write down the pages number in front of each question, then it will be easy for you to find out all the questions with proper headings. और आज के लेसन में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे और जिन क्वेश्चंस की हेडिंग्स प्रॉपर नहीं है उनकी हेडिंग्स भी बनाएंगे और मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न आप लोगों का अब ईच लॉन्ग क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स and there will be 3 long questions in your paper pattern. जो new paper pattern आया आप लोगों का 2025 to 26 का, उसमें there will be 3 long questions and you have 5 long question and you have to attempt any 3 and each long question carry 10 marks. हर long question 10 marks का, इसलिए आप लोगों को डिटेल लिखना जरूरी है. अगर आप short लिखते हो, without heading लिखते हो, तो you will not get good marks. और भी जो बीच में एडिशनल पॉइंट्स आएंगे, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी, वो मैं साथ साथ आप लोगों को हाईलाइट करवाती जाऊंगी. Alright, so आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है. So let's take the start. You should have a highlighter in your hand and the pen also. So the question number 1 is state, this is the unit number 4 Pakistan and World Affairs. And the long question answer number 1 is state the main objectives of Pakistan's foreign policy. यानी कौन से मेन मकासद हैं पाकिस्तान की गैर मुल्की पॉलिसी के, खारजा पॉलिसी के. दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 74 and 75. Okay, so next we have the short question, long question number 2. The question is discuss importance of Kashmir issue in Pakistan and Pak India relations. And this question is on page number 80, 81 and 82. यानी कश्मीर इशू का जो अहमियत है वो पाक इंडिया रिलेशन में क्या है. Question number 3 is describe Pakistan's relation with Turkey. यानी पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के बारे में आप बताओ. This question is on page number 85. Question number 4 is what role has China played in the construction and development of Pakistan? Discuss. यानी चाइना किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की में, तामीर में किरदार अदा कर रहा है. This question is on page number 79, 80 and 93. And the long question number 5, last question is of your number 4. Describe Pakistan US relation. यानी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे हैं वो आप लोगों ने describe करने हैं. And this question is on page number 90. So get ready. The question number 1 is, this question is on page number 74. You can also open this page. Here is 74. Okay, this is the long one, students. And the question is, first you will write the heading objectives of Pakistan foreign policy. Okay, first you will explain. आप लोगों ने शॉर्ट में भी ये याद किया हुआ है व्हाट इज मेंट बाय फॉरेन पॉलिसी. यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट में भी किया हुआ है, तो आप लोग अगर वो भी लिख देते हो तो वो भी इनफ डिटेल है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, उसकी डेफिनेशन क्या है. एंड सेकंड हेडिंग कि इसका दूसरा पहला मकासद क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के नजरिए को तहफ़्फ़ुज़ देना. You will explain the detail. Then next ऑब्जेक्टिव इज नेशनल सिक्योरिटी, यानी हमारे जो मुल्की हालात हैं, फॉरेन पॉलिसी है, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो. आफ्टर दैट थर्ड हेडिंग इज प्रमोशन ऑफ कल्चर और कल्चरल डेवलपमेंट, हमारी सकाफत की तरक्की हो और हमारी सकाफती तरक्याती को किस तरह हम प्रमोट कर सकते हैं पूरी दुनिया में. दैट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी. एंड द नेक्स्ट वन इज 4 पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हमारी मौशी तरक्की भी इस पे डिपेंड करती है. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी. अगर आप इसमें और मजीद हेडिंग्स ऐड करना चाहते हो तो बीच में आप शॉर्ट जो हेडिंग्स होती हैं, और जहां पर भी स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट डेट नजर आ रही है वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर हाईलाइट करनी है, क्योंकि वो आप लोगों के एडिशनल एमसीक्यूज और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प करती है और वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 80. Here is the 80.
Okay, so the question number 2 is discuss importance of Kashmir issue in Pak-India relations. यानी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कश्मीर इशू की क्या इम्पोर्टेंस है. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. कश्मीर इशू, जेनेसिस ऑफ कश्मीर इशू, यानी किस तरह से इसका आगाज हुआ. नेक्स्ट यू कैन मेक द हेडिंग मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन कश्मीर, यानी किन लोगों की थी मेजोरिटी. यू हैव टू एक्सप्लेन इट. देन नेक्स्ट हेडिंग यू कैन मेक एन एग्रीमेंट विद इंडियन गवर्नमेंट, यानी ये इंडिया के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ. नेक्स्ट यू विल राइट मेन हेडिंग. स्टूडेंट्स ऑलवेज राइट एंड द सेंटर ऑफ द पेज. आप लोगों ने अपनी शीट के सेंटर में हमेशा मेन हेडिंग लिखनी है, और जो सब हेडिंग्स हैं वो उसकी जैसे हम नॉर्मल हेडिंग लिखते हैं उस तरह से, ठीक है. एंड देन दिस इज द मेन हेडिंग. देन इश्यू टू द सिक्योरिटी काउंसिल. नेक्स्ट सब हेडिंग challenges legitimacy of Indian claim. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फॉर सीज फायर, यानी जंग रोकने के लिए. एंड देन रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. अगेन मेन हेडिंग इज इंडियाज रिफ्यूजल टू होल्ड प्लेबिसाइट, कहते हैं रायशुमारी करना, यानी किस तरह से इंडिया ने रायशुमारी करवाने से इनकार कर दिया, इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया, बिकॉज दे नोज के इस तरह से क्योंकि वहाँ मुसलमान ज्यादा थे तो कश्मीर उनके हाथ से चला जाएगा. Next heading is flatly refused to hold a plebiscite. And then main heading is arrival of UNNY, यानी यूनाइटेड नेशन के जब लोग उधर आ गए उन्होंने क्या किया, persuade India to hold a plebiscite. And then India refused to cooperate. इंडिया ने completely अपना cooperate करने से refuse कर दिया, इनकार कर दिया. Then current situation भी अभी तक कोई अच्छी नहीं है कि long standing dispute, अभी तक ये मसला चल रहा है आज़ाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का. Okay, so the long two question will end here, right? So next we have the long question number 3 and the page number is 85. इसी से next page पर आ जाएगा. Yes, this is the 85. This is the long 3 students, and the question is डिस्क्राइब्स पाकिस्तानी रिलेशन विद टर्की, यानी तुर्की के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं. दैट इज ऑलवेज यूनिक रिलेशनशिप. सो ये शॉर्ट है आप लोगों की बुक पर, सिर्फ इतना सा लॉन्ग है ये तुर्की के साथ ताल्लुकात, इसलिए आप लोगों का इसमें हेडिंग्स बनाना बहुत ज़रूरी है. तो आप लोग अगर कोई और भी डिटेल है तुर्की से रिलेटेड तो आप इसमें ऐड कर सकते हो. So the first heading you can make in it, this is the main heading, then sub heading is eternal and unique relationship. You can make the second heading is the respect and esteem of Pakistani citizens. And then you have to explain what is RCD and what is ECO. These are two separate headings. And then generously donated for the earthquake victims, यानी किस तरह से तुर्की ने जब earthquake आया था 2005 में तो help out किया था. So here it will be end here. ये बहुत short long है लेकिन आप लोग इसको increase कर सकते हो इसकी length. Okay, so next we have the long 4 and this question is on page number 79. Here I will open 79. Okay, this is the long 4 and the question is what role has China played in the construction and development of Pakistan discuss. यानी चाइना ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया. इसमें सारा आप बताओगे. फ्रेंडशिप इज एग्जाम्पलरी. इंटरनेशनल रिलेशन यानी बैन अवी ताल्लुकात में सबसे ज़्यादा जो फ्रेंडशिप है वो चाइना के साथ है. नेक्स्ट हेडिंग यू कैन मेक सपोर्ट ऑफ अ ग्रेट पावर. नेक्स्ट हेडिंग फेस ग्लोबल चैलेंजेस, तब भी चाइना हर वक्त हमारे साथ रहता है. And next point is industrial and economic development, tank and aircraft manufacturing. आप साथ साथ हाईलाइट करते जाओ और जहां पर भी इंपॉर्टेंट डेट्स नजर आ रही है स्टूडेंट्स वो भी आप लोग लाजमी हाईलाइट करते जाओ. कराकरम हाईवे. एंड यहाँ पर लॉन्ग 4 का पार्ट ए खत्म हो जाएगा. अभी इसकी और भी डिटेल आप इसमें ऐड कर सकते हो. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 93, यानी यहाँ तक आपने लिख के फिर 93 पेज पर जाना है अपनी बुक के. दिस वन ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आप लोगों का ये वाला पार्ट है, सिर्फ यहाँ तक है. इसमें दो शॉर्ट भी हैं आपके और लॉन्ग में भी आ रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें. इसमें सी पैक के बारे में भी है और गवादर पोर्ट के बारे में भी है.
तो यू कैन मेक द हेडिंग लाइक दिस, और लॉन्ग 4 जब चाइना पाकिस्तान का रिलेशन आएगा तब भी यू हैव टू एक्सप्लेन इट. ओके, दिस इज लॉन्ग 4. ह्यूज ट्रेड प्रोजेक्ट एंड देन प्रोमोटिंग डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, किस तरह से ये डेवलपमेंट और खुशहाली को प्रमोट कर रहा है. ट्रेड फ्रॉम गवादर पोर्ट, किस तरह से गवादर पोर्ट से तिजारत हो रही है. सी पैक, एंड देन बिजनेस एक्टिविटीज इन द कंट्री विल एक्सिलरेट, यानी किस तरह से हमारा जो कारोबार है वो बढ़ रहा है विद द सी पैक प्रोजेक्ट. ओके, हियर द लॉन्ग 4 विल बी एंडेड, यानी हमने पहले वो वाला पार्ट भी किया, आप ये पार्ट बी भी आप उसमें ऐड कर देना, देन इट विल बी अ गुड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज हम पूरी बुक को कवर करेंगे विद शॉर्ट लॉन्ग विद प्रॉपर हेडिंग्स, और साथ साथ हम जो नई अपडेट्स आती जाएंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी. ओके, नेक्स्ट वी हैव द लॉन्ग 5 एंड द क्वेश्चन इज that is on page number 90. First open the page number 90. Here is that. Okay, and the question is describe Pakistan US relation. US के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ आपने रिलेशन एक्सप्लेन करना है. ये भी इतना लॉन्ग नहीं है, यहीं से स्टार्ट होके इसी पेज पे खत्म हो जाएगा. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फर्स्ट यू विल राइट द हेडिंग सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. Okay, this is the first subheading. Then military and economic assistance to Pakistan. This is the second heading. Then defense agreement CETO with the United States. Third heading. And then boost its defense capabilities. यानी किस तरह से इस डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है. And then Pakistan help Afghan people. And the last heading is Pakistan US relation improved. Okay, here the long 5 will be ended. Alright students, so we have completed the unit 4. In previous video we have completed the MCQs and the short question answers, and now we have completed all the long headings with proper headings. I hope कि आप लोगों के लिए informative होगी video. If you like this video, please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Till then, take care and Allah Hafiz.